लेट्स फाइट बयानबाजी। अमेरिकी सीनेटर रैंड पॉल ने एससीओ समिट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे दुश्मन अब एकजुट हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से अमेरिकी डॉलर की रिजर्व करेंसी की स्थिति भी खतरे में पड़ सकती है। It might be ironic if in the end the protectionist flavor of the day, the tariffs that we're putting on, if it brought together our enemies and ultimately led to the collapse of the reserve currency of the world, that would be ironic that it didn't actually work the way we intended. I don't think we know that yet. Okay. But we do see our enemies and our adversaries coming together, but not just China and Russia, North Korea and Iran. We also see India and others being pushed away. So if you put a 50% tariff on India's goods, India will become closer to China and closer to Russia. So I think really that we ought to think some of these things through before we put exorbitant tariffs on countries that are potentially and have been our friends like India. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा कि मेरे पास पुतिन के लिए कोई संदेश नहीं है। उन्हें पता है कि मैं कहां खड़ा हूं। ट्रंप ने कहा कि अब फैसला उन्हीं को करना है। हम या तो खुश होंगे या नाराज, और अगर हम नाखुश हुए तो आप देखेंगे कि कदम उठाए जाएंगे। I have no message to President Putin. He knows where I stand, and he'll make a decision one way or the other. Whatever his decision is, we'll either be happy about it or unhappy. And if we're unhappy about it, you'll see things happen. डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर भी अपना अड़ियल रवैया नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत के मामले में हम पहले ही सेकेंडरी सैंक्शंस लागू कर चुके हैं और दूसरों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। Leaders of Russia and North Korea and China together, the first time the leaders of those three countries have been together to sort of show solidarity. You said that they're conspiring against the United States. What do you think they're conspiring to do? And given this, is it reason why you should slap or would consider slapping secondary sanctions on Russia if they're conspiring against the U.S. now? Well, I've already done that with regard to India, and we're doing it with regard to other things. And I put out a truth last night. You saw that. And I was the one that brought it up. I said they're only doing this. They're looking to when they did what they did. I thought it was a beautiful ceremony. I thought it was very, very impressive. But I understood the reason they were doing it, and they were hoping I was watching, and I was watching. My relationship with all of them is very good. We're going to find out how good it is over the next week or two. I think that we helped China very much, as you know, when they talk about freedom. And I don't believe that, and maybe I'm wrong, I hope I'm wrong, but I don't believe that America, that the United States was acknowledged for helping China to get to gain its freedom. But perhaps I was just that was a sleight of hand. I mean, I was very surprised. I watched the speech last night. President Xi is a friend of mine. But I thought that the United States should have been mentioned last night during that speech because we helped China. राजस्थान में विधायक हरीश चौधरी ने विधानसभा में कोचिंग सेंटर्स पर लाए गए बिल पर हो रही बहस के दौरान बच्चों के भविष्य पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कोचिंग इंडस्ट्री की चिंता तो कई बड़े नेता कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ खिलवाड़ की फिक्र किसी को नहीं है। करोड़ के विज्ञापन के अंदर उस कोटा की इंडस्ट्री के बारे में चिंता कर रहे हैं, सदन में कर रहे हैं, पर इन बच्चों को हम लोग ये ईमानदारी से नहीं बता रहे हैं कि बच्चों सरकारी नौकरियां नहीं है। तुम जो कोचिंग क्लासेस के माध्यम से अपनी योग्यता खत्म कर रहे हो, सिर्फ इकलौता लक्ष्य सरकारी नौकरी, वो तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। उसके बाद तुम योग्य नागरिक के तौर पर योगदान नहीं कर पाओगे। सभापति महोदय, कौन बताएगा? ये हम नहीं बता रहे हैं। ये घंटियां हम लोगों के लिए ही है, ये व्यवस्थाएं हम लोगों के लिए ही है। उन कोचिंग कक्षाओं के लिए तो कई मॉडल है, उनका संरक्षण सब कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हो। लोकसभा के अंदर जो कुर्सी पर बैठे हैं वो भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। आप यहां कर रहे हो, वो वहां कर रहे हैं, पर इन गरीब बच्चों को, सामान्य बच्चों को कौन उनका ध्यान रखेगा? आज जो ये व्यवस्था हम लोगों ने कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से दी है, मेरा आपसे नम्र निवेदन है, अब समय आ चुका है
इस व्यवस्थाओं को अगर अमूल चूल परिवर्तन नहीं करेंगे तो राजस्थान के साथ हम अन्याय कर रहे हैं। नारे कुछ भी कर ले, जय जय राजस्थान, पर ये फैसले जय जय राजस्थान के नहीं है। इस राजस्थान को हम लोग पीछे धकेल चुके हैं, इस राजस्थान को खत्म नहीं होने दे। मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज की सरकार के अंदर संपूर्ण कमी है और हम लोग संपूर्ण बिल्कुल पूर्ण। राजस्थान में एसआई भर्ती मामले पर भी विधानसभा में हंगामा हो रहा है। एमएलए रविंद्र सिंह भाटी ने सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि मेहनती बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, उनकी मेहनत की हत्या की गई है। सब जो अपराधी थे, जिन्होंने गलत किया था, उनको सजा मिली या नहीं मिली, पर जो लोग, जो बच्चे अपनी मेहनत के बलबूते पे, खून पसीने की कमाई से कोचिंग करके, बड़े शहरों में रह के अपनी पूरी जो पूंजी थी उनको लगा के जो नौकरी लगे, जो साधारण बच्चे थे, जो ग्रामीण परिवेश से आने वाले थे, उन सभी की हत्या आप लोगों ने की है। आपके हाथ भी रंगे हुए हैं। मैं तो इस सदन के माध्यम से समाप्त कीजिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी जिनका कोई कसूर नहीं है, तो उन्हें आप उनके साथ न्याय करें, उनको पूरे तरीके से न्याय मिलना चाहिए और कोचिंग आप बढ़ाएं, पर युवाओं का, आने वाली पीढ़ी के बारे में आप विशेषकर सही ढंग से सोचें और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के बाद सरकार ने आम जनता और मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोजमर्रा के सामान और बड़े प्रोडक्ट्स पर जीएसटी कम करने का ऐलान किया। Just indicate करते हुए I'll stop my input. If Revenue Secretary has anything more he can add. उसके बाद आपकी क्वेश्चन आंसर करते हुए हम बाकी सबको कवर करेंगे। कॉमन मैन एंड मिडिल क्लास आइटम्स में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap, soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil, 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूं। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, ऑल द इंडियन ब्रेड्स विल सी निल रेट। सो रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और वॉट एवर इट इज, दे ऑल कम टू निल। रिडक्शन ऑफ GST फ्रॉम 12% और फ्रॉम 18% टू 5, इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं, नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रही है। फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 टू 18%, इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारी चीज हैं, एयर कंडीशनिंग मशीन्स, TVs which are over 32 inches, all TVs now at 18. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि आरजेडी सरकार के समय महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे, बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं। मोदी ने कहा कि आरजेडी जैसी पार्टियां कभी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। साथियों, मां को गाली देने वाली सोच, बहन को गाली देने वाली सोच महिलाओं को कमजोर समझती है। ये मानसिकता महिलाओं को शोषण और अत्याचार की वस्तु मानती है। इसलिए जब जब महिला विरोधी मानसिकता को सत्ता मिली है, सबसे ज्यादा तकलीफें माताओं, बहनों को, बेटियों को
महिलाओं को ही झेलनी पड़ी है। और ये बात बिहार की मेरी माताओं बहनों से ज्यादा कौन समझेगा। आरजेडी के दौर में जब बिहार में अपराध और अपराधी बेलगाम थे, जब हत्या, फिरौती और बलात्कार सामान्य बात थी, आरजेडी सरकार हत्यारों और बलात्कारियों को संरक्षण देती थी। आरजेडी के उस राज की सबसे ज्यादा चोट किसे उठानी पड़ती थी? बिहार की मेरी माताओं को, बिहार की मेरी बेटियों को, बिहार की मेरी बहनों को, हमारी बिहार की महिलाओं को उठानी पड़ती थी। उधर तेजस्वी यादव ने बीजेपी और प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पहले भी अपने बयानों में कई बार नेताओं का अपमान किया। तेजस्वी ने कहा कि इन लोगों ने सोनिया गांधी को भद्दी गालियां दी और नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाए गए। और हम इतना कहना चाहते हैं कि किसी की भी माँ को अपशब्द जो है नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं, ना ही हम लोगों के संस्कार में ये है। सबकी माँ होती है, हम सबों की माँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आपके जो 1000 लोगों का जो शोषण जो किए हुए थे, क्या नाम है वो बैंगलोर वाले, रवन्ना, उनके प्रचार में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी, सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। नीतीश कुमार जी के डीएनए को ऊपर जो है सवाल उठाए गए। मेरे को भाजपा विधायक ने मां बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया। भाजपा के प्रवक्ता जो है कई बार जो है महिलाओं का अपमान किया ऑन कैमरा लाइव। जो व्यक्ति हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान को नंगे घुमाने की बात कर रहा था सड़क पर, उसको भाजपा जो है पार्टी ज्वाइन कराती है, सम्मानित करती है। तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडस्ट्री से जुड़े डेलीगेट्स और लीडर्स को उद्योग जगत से रिसर्च और इनोवेशन पर भी निवेश करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री को सिर्फ मुनाफा कमाने के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून के राज की स्थापना की दिशा से अपनी स्टेट फॉरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटी का इंस्टीट्यूट की भी स्थापना राज्य के अंदर करते हुए आज वहां पर बेहतरीन इकोसिस्टम को डेवलप किया है। लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। अभी इस दिशा में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है और उस दिशा में हम लोग आईआईटी कानपुर के भी संपर्क में हैं और आईआईटी कानपुर से भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। हर एक क्षेत्र में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है और मेरा मानना है कि यह एक नया फील्ड होगा जिसमें हमें कार्य करने की आवश्यकता है। उसमें खासतौर पर मैं इस बारे में आज कहूंगा कि आईआईटी कानपुर इस दिशा में प्रयास करे कि हम लोग भारत का पहला डीप टेक भारत 2025 की दिशा में आगे बढ़े। एक अच्छा हमारा समिट हो यहां पर जो डीप टेक भारत को लेकर के कार्य कर सके और आईआईटी कानपुर को इसका सेंटर बनाया जाना चाहिए। हम लोगों ने इस दिशा में गौतम बुद्ध नगर जनपद में कुछ लैंड भी अलॉट की है और मैं चाहूंगा कि आईआईटी कानपुर अगर उसको लीड करे तो वह ओवरऑल पूरे देश के अंदर एक नई उन जो हमारी आज की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों की दिशा में हम सबको एक नया एक लीडरशिप देने की सामर्थ्य आईआईटी कानपुर में है।
ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।